Today lecture discuss about the structure of the plasma membrane. Actually, plasma membrane is made by the phosphobilayer lipid. It contains the two heads and two tail. Both are emerge of each other, and the upper surface of the phospholipid, some protein, subproteins, and some lipid attach. That was the upper surface attached protein and carbohydrate is known as glycoproteins, and carbohydrate with lipid attached is known as glycolipid, and that also known as the carbohydrate attached lipid is signature cell. That is a individual cell recognition cell that recognized by the on the basis of attachment of the carbohydrate. After then, I would like to discuss about the structure of the plasma. Already discussed about structure of the plasma membrane. Then types of the membrane proteins. Actually, membrane abandoned different type of the proteins like a extrinsic protein or intrinsic protein, and some intercellular junction of the enzymes, and also attached with the transducer receptors and transport protein that includes the passive and active proteins. Actually the receptor is the specific type of macromolecule which are embedded in the cell membrane that having to capacity to recognize any molecule and give the response, that is known as receptor. It can say another word receptor having the capacity of affinity and also have the extrinsic property. After then, the cell recognizing protein, that is identify the type of the cell and identify the cell as self-various foreign substance, that is known as glycoproteins, that made by the carbohydrate and vary to different species, individuals and other type of individual. It can also known as the signature cell. मतलब ये एक सिग्नेचर सेल की तरह होता है, और जो प्रोटीन हर सेल के सेल मेम्ब्रेन में जो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट टाइप का होता है, ये हर सेल के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि ये बॉडी का पार्ट है कि बाहर के बॉडी के फाइन पार्टिकल है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोटीन body has been recognized two foreign particle that having the own part are foreign part. That's why also known as the signatures part of the cells. Okay. After the intrinsic proteins, and that is embedded in the cells, and after then is known as the some enzymes that having the enzymes especially important in the membrane of organelle, enzyme that help to the metabolism of the cell. After that, receptor already discussed about what is receptor, how to act, and what is the function of receptor, and that is the structure of receptor, that shape of that is the receptor, and a molecule bind to the receptor. After then binding, if the bind to the receptor, that having the extrinsic affinity, and after the change and give the response, that is known as extrinsic activity, that indicate in the slide. And after then type of proteins, transport proteins. Actually transporter protein is two type: passive transport proteins and active transport protein. Passive transport protein allow to water soluble substance polar molecule passes through the plasma membrane without using the energy, and active transport proteins are spend the energy for transport of water soluble substance against the concentration gradient. It means from the lower concentration to higher concentration, that capacity by using the energy the passes as molecule, that is the active transport of proteins. This is the structure of protein. This is the purple color of the color shape, that is the protein, and that is water soluble molecule passes from higher concentration to lower concentration, that is the active passive transport. And
that use up energy another is proteins and passes the substance from lower concentration to higher concentration, that is known as active transport. You can say the active proteins. Transport of the substance across the plasma membrane is divided into two type transport. First is the passive transport, second is the active transport. Passive transport also divides into three parts. One is the diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. And the same way, active transport also divided in different parts: bulk flow, endocytosis, and exocytosis. After then, some factor affecting the diffusion rate, मानो सम फैक्टर डिफ्यूजिंग रेट पे कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द स्टिफनेस ऑफ concentration gradient from the fast diffusion. मतलब if the concentration gradient increases of any solvent or solute, any solute that passes the higher rate. मानो यदि कंसंट्रेशन यदि अधिक होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है. आफ्टर द मॉलिक्यूलर साइज, स्मॉलर मॉलिक्यूल साइज फास्ट डिफ्यूजन इंडिविजुअल पासेस फास्ट है, मतलब सिंपली फास्टली डिफ्यूज होता है मॉलिक्यूलर साइज पे. यदि स्मॉलर है तो लार्जर मॉलिक्यूल है तो स्लो डिफ्यूजन होगा. एंड टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में फास्ट डिफ्यूजन होता है. तो ये दो चार फैक्टर से एरिया ऑफ डिफ्यूजन मतलब ज़्यादा एरिया पे भी डिपेंड करता है. यदि सिंपल डिफ्यूजन जैसे परफ्यूम है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है फास्ट डिफ्यूज हो जाता है. तो इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मॉलिक्यूलर साइज, टेम्परेचर, और इस पे डिपेंड करता है. यदि ये इसी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन में इफेक्ट आता है. अब सिंपल डिफ्यूजन, व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर टू प्रोटीन्स. मतलब सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है. दैट पासेस सिंपली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लोअर का नॉन पोलर सबस्टेंस हाइड्रोफोबिक सबस्टेंस. एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्टोराइड जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये सिंपली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं जिसमें किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है. क्यों डिफ्यूज होते हैं? क्योंकि स्मॉलर साइज होती है, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं तो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं. उधर जो पोलर हाइड्रोफोबिक सबस्टेंस कैन नॉट पासेस डायरेक्टली टू द लिपिड सॉल्युबल बाइलेयर मीन्स वाटर एंड आयंस एंड कार्बोहाइड्रेट. एक एग्जाम्पल है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ये इजीली जो है लिपिड सॉल्युबल से सिंपली डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं. तो इसको डिफ्यूजन के लिए क्या करना होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये डिफ्यूज होते हैं. ठीक है. अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन में जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल साइज जो है जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, एस्टोराइड है, सिंपली डिफ्यूज होता है बाई लिपिड लेयर से. एंड जहाँ पोलर सबस्टेंस ग्लूकोज, वाटर, आयंस है ये सिंपली डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं. इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे आपको पहले बता दिया कि स्मॉलर मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज होते हैं, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोलर सबस्टेंस होते हैं वो सिंपली डिफ्यूज नहीं होते हैं. तो उसके लिए एक फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स होता है जो इजीली उसको डिफ्यूज कराता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग अप एनी एनर्जी. मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन जैसे ही है, बस इसमें यह है कि लार्जर मॉलिक्यूल के लिए एक प्रोटीन्स मीडिएट करता है इसको डिफ्यूज होने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वाटर्स है और लार्जर मॉलिक्यूल है सेपरेट डिफ्यूजन. जैसे ये आपका एक फिगर्स है, जैसे ये फिगर्स है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये फिगर्स है. इसमें देखिए प्लाज्मा आउटसाइड में ये लार्जर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन प्रोटीन्स है. जो येलो कलर का होता है ये मॉलिक्यूल्स है और जो पर्पल कलर का है ये प्रोटीन्स है जो फैसिलिटेट करेगा.
ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पास होता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन ये प्रोटीन फैसिलिटेट करता है, इसीलिए इसको फैसिलिटेट पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। आफ्टर देन आता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिव permeable membrane from higher concentration to lower concentration without using up any energy। मतलब इट इज़ द वाटर, एक्चुअली ये एक्वापोरिक चैनल होते हैं जो कि ऑस्मोसिस में हेल्प करते हैं। अब ऑस्मोसिस का हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन पास होते हैं, तो कैसे होते हैं उसको मैं बताता हूँ। एक्चुअल ये जो है सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, या एक्चुअली आप क्योंकि कह सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन रिलेटिवली सोल्यूट उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है, इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। और जो पैसिटोनिक हाइपोटोनिक होता है इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन लोअर होता है, मानो ये लोअर कंसंट्रेशन होता है। आइसोटोनिक में दोनों जो है सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। जैसा कि आप ट्यूब में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है और यहाँ पे दूसरे साइड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है और यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। तो जो इसी हिसाब से आप देख रहे हैं वाटर्स, इसमें वाटर जो रेड कलर का दिख रहा है इसमें अटैच वाटर है और इसमें जो है ये पर्पल कलर के सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं जो क्लस्टर वाटर से अटैच होते हैं। तो नेट फ्लो जो होता है, अब देखिए इसमें नेट फ्लो वाटर का हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब वाटर फ्लो होता है इसमें, एक्चुअली में वाटर फ्लो होता है। फ्लो जैसे नेट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस है। इसके बिहार में ऑस्मोसिस एंड एनिमल सेल्स, यदि एनिमल सेल्स को, जैसे यहाँ आरबीसी है, यदि इसको हम प्लेस करते हैं डिस्टिल वाटर में, तो डिस्टिल वाटर में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव करेगा आरबीसी के अंदर। अब वहाँ पे वाटर मूव करने से वो आरबीसी स्वेल होने लगती है। आफ्टर देन ये ब्रस्ट हो जाती है, मतलब स्वेल इतना हो जाता है कि ये टॉयलेशन पावर इसका फिनिश हो जाता है, ब्रस्ट हो जाती है। तो ये डिस्टिल वाटर में रखने से वाटर जो है इसमें आरबीसी में इंटर करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। और इधर दूसरी साइड यदि यही आरबीसी यदि साल्ट सोल्यूशन में रख देंगे तो साल्ट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आरबीसी के वाटर जो है साल्ट में चले जाते हैं, तो ये सिंक हो जाता है। इसीलिए जो है ये सिंक हो जाता है और ये स्वेल हो जाता है। इसमें डिफरेंट क्या है, कंसंट्रेशन का है, किस सोल्यूशन में रखा गया है। यदि डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर पास होता है, यदि हाईली साल्ट सोल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी से वाटर जो है सेल जो है इन्वायरमेंट में चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है, इसीलिए सिंक हो जाता है। इसमें आप ऐसे देख सकते हो जैसे ग्राम चना होता है, इसको पानी में रख देते हैं इवनिंग को, तो सुबह वो स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल करता है कि वाटर पास हो जाता है उसके सेल के चने के अंदर और वहाँ वो फिल होके स्वेल कर जाता है। तो ये एक तरह से ऑस्मोसिस है जिसमें वाटर मूवमेंट करता है, सल्यूट नहीं। अब इसके बाद इसी तरह से प्लांट में हम बताते हैं कि इसी तरह से स्टिफनेस हो जाता है और सिंक कर जाता है। ये डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो प्लांट सेल स्वेल कर जाएगी और ये कंसनट्रेट साल्ट सोल्यूशन में तो प्लांट सिंक कर जाती है, ये प्लांट सेल का है। ऐसे ही आपको आप हाइपोटोनिक के सोल्यूशन हो गया, ऑस्मोसिस का है, कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं एंड आफ्टर देन आपको हम और बताते हैं जैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। आइसोटोनिक होगा आरबीसी से रखते हैं तो कुछ नॉर्मल रहता है क्योंकि कहीं भी कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम नहीं होता है, तो उसमें जो है वाटर का एंट्रिंग और एग्जिट दोनों बराबर होता है, तो आरबीसी नॉर्मल रहता है। लेकिन हाइपोटोनिक में रखने पे वाटर का कंसंट्रेशन, मतलब हाइपोटोनिक में सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम होता है तो वो वाटर मूव करके आरबीसी में आता है और आरबीसी फ्लस्ट हो जाती है। हाइपोटोनिक में रखते हैं तो क्या होता है कि जो है आरबीसी का जो वाटर है वो बाहर रिलीज हो जाता है, साल्ट के कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, इसलिए वो सिंक हो जाता है। अब इसका ऑस्मोसिस के समरी है,
और जो पहले हम बता दिए हैं। आफ्टर द स्टार्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सब जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोटीन्स के हेल्प से मूव होता है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है विद द यूज ऑफ एटीपी एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सेलेक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं जो मसल्स में, नर्वस में होता है, नर्वस सेल में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको मैं बता दिया, इसका एग्जांपल्स आएगा। अब इसको आप देखो, अब देखो इसका एग्जांपल है। जैसे ये जो पर्पल कलर का है ये रिसेप्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ऊपर इसके मेम्ब्रेन के अपर साइड में जो है हाई कंसंट्रेशन मालिक्यूल का है और जो है नीचे में लोअर कंसंट्रेशन है। ये जो है इसमें बाइंड होता है, बाइंड तो हो गया लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा जब तक इसमें एटीपी एनर्जी यूज नहीं होगी। अब एटीपी एनर्जी यूज कैसे होती है? एटीपी से एक फास्फोरस निकलता है जो इसको एक्टिवेट कर देता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, और एडीपी में एटीपी कन्वर्ट हो जाती है और उससे क्या होता है कि इसका शेप चेंज हो जाता है और इससे जो है मालिक्यूल शेप चेंज होने की वजह से ये बाहर की तरफ ओपन हो जाता है और मालिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ चला जाता है। यही जो है आपका प्रोटीन का शेप चेंज होने की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि एनर्जी कैसे यूज करता है रिसेप्टर, तो उसको आपको ध्यान देना है। जो एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, तो ये अब एक फास्फोरस रिलीज होता है, वही फास्फेट ग्रुप यहाँ पे बाइंड हो जाता है। फास्फेट ग्रुप जो ही बाइंड होगा ये जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका शेप चेंज हो जाता है। जो अंदर की तरफ खुला था साइटो अंदर की तरफ खुला था रिसेप्टर का प्रोटीन्स का ओपनिंग, वो बाहर की तरफ हो जाएगा और मालिक्यूल इजीली बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके और सारे स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे। इसका बल्क फ्लो आपको बताता हूँ। बल्क फ्लो वेसल्स यूज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर एनर्जी। मतलब देखो कुछ वेसल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये टू टाइप का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता है, एक एक्सोसाइटोसिस, एक इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब कि मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल से सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इंडोसाइटोसिस होती है। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन जो इंडोसाइटोसिस थ्री टाइप्स है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे कोई सेल है उसमें वैक्यूल में सब मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, जो भी है उसको एक्सोसाइटोसिस होना है। वो जो है मूव करके सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल वॉल पे अटैच हो जाती है। इंटरनल वॉल पे अटैच होने के बाद वो जो है उसको डिफ्यूज कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और मॉलिक्यूल को रिलीज करती है। तो साइटोप्लाज्म से जो सबस्टेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके फ्लूइड आउटसाइड में मूवमेंट कर जाता है। इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस में ये मैं आपको बता दिया। इसमें एग्जाम्पल कौन रोल करता है? गाल्जी बॉडी ऑफ वैक्यूल है जो इमर्ज कर जाता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिलीज देयर कंटेंट। इन्हें एक्चुअली ये नर्वस सेल्स एंड रिलीज टू न्यूरोट्रांसमीटर ये होते हैं। इसमें क्या एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से वो पास कर जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ओके, अब देखो इसके बाद आता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का फ्लूइड सल्यूट या कुछ भी सबस्टेंस होता है वो उसको प्लाज्मा पर अटैच होता है, वो एक वैक्यूल बनाता है। वैक्यूल फॉर्मेशन से वो अंदर मूव कर जाता है और इस तरह से ये इंडोसाइटोसिस हो जाती है। इंडोसाइटोसिस जैसे आपको पहले बता दिया कि ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला फाइगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग होता है, मतलब कोई सल्यूट सबस्टेंस है उसको ईट करता है, उसको इंडोसाइटोसिस करता है। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग होता है, मतलब फ्लूइड को इंसाइड करता है। और रिसेप्टर मीडिएटेड में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैं अलग आगे बताता हूँ, ठीक है।
तो ये है, इसको आगे फाइगोसाइटोसिस सेल ईटिंग है मेम्ब्रेन से सॉलिड मॉलिक्यूल को जो आपको बता दिया। इसको फूड पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया है या कोई फूड पार्टिकल है, इसको ईटिंग के प्रोसेस से जो अंदर की तरफ सबस्टेंस आता है वो फाइगोसाइटोसिस होता है। पिनोसा सेल ड्रिंकिंग है, जो सेल ब्रिंग्स इन द लिक्विड इनसाइड ऑफ द सेल। अब इसके बाद आता है, आपको मैं और बताता हूँ, सेल मीडिएशन इंडोसाइटोसिस, मतलब हाईली सेलेक्टिव इंडोसाइटोसिस होता है, जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं आउटसाइड में सेल के बाइंड होके स्पेशली सबस्टेंस को ब्रिंग इनसाइड द सेल में इनसाइड द सेल्स करते हैं, जिसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आगे मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये वाई जैसे रिसेप्टर बना हुआ है और इसमें ये कुछ मालिक्यूल्स हैं, स्पेसिफिक मालिक्यूल, जो कि रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर कोई ऑक्यूपाई पहले से किया हुआ है, तो ये धीरे धीरे जो सल्यूट है अंदर की तरफ, ये जब भी ये रिसेप्टर पे कुछ बाइंड होता है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, जो एक ट्रायंगल के शेप का बना हुआ था, जब भी बाइंड होगा ये अंदर की तरफ ये मूव कर जाता है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, और मूव करते करते फिर ये जो है कोटेड वेसल बना देता है, और फिर ये कोटेड वेसल साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। इसी को हम रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें रिसेप्टर होता है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के बाइंड होने के बाद ये जो वैक्यूल कोटिंग प्रोटीन बनता है और अंदर की तरफ मूव करके वेसाइल्स बना देता है, जिसको इंडोसाइटोसिस। इसके इससे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये कि जो एक वाई शेप का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें लिगेंड बाइंड होता है, लिगेंड बाइंड होते हुए इनसाइड में कोटेड पीच बन जाती है, फिर बाद में वैक्यूल बन जाता है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। इस तरह से ये स्लाइड फंक्शन आपका ये कंप्लीट होता है, जो कि स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ बता दिया हूँ, और इसको आप सीरियसली आप एक बार स्लाइड के साथ पढ़ के आप समझ लीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप अच्छे समझ दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल।